Good morning. Yesterday we have discussed about what are polynomials, and today we are going to discuss about zeros of a polynomial. What is the meaning of zeros of a polynomial? It means value of variable on which p of x become 0 is known as zero of that polynomial. For example, कल अपन ने बात की थी p of x इज इक्वल टू, आपके पास था 2x plus 3. Then to find out the zero of this polynomial, what we have to do? We have to put this polynomial at is equals to 0. It means अपन इस polynomial को किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के इक्वल. देन ये किस में चेंज हो गया? एक लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गया विद वन वेरिएबल. सो यहाँ से अपन इसकी क्या फाइंड आउट कर लेंगे? x की वैल्यू. सो ऑन ट्रांसपोजिंग यहाँ पे +3 है. +3 को जब आप RHS साइड में ट्रांसपोज करोगे, ऑन ट्रांसपोजिंग +3 इन RHS साइड वी विल गेट -3. सो 2x इज इक्वल टू -3. एंड सिंस here 2 is in multiplication here, so on transposing this 2 in RHS we will get x is equals to, on transposing multiply 2 in RHS it will be going divide, so -3 by 2. So value of x is equals to -3 by 2. What is the mean of this? It means at x is equals to -3 by 2, जब आपका x का वैल्यू क्या होगा? -3 by 2 होगा, आपका जो पोलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 0. लेट्स प्रूव इट. लेट्स find out the value of polynomial at x is equals to 3 by 2. So यहाँ पे आपको x के प्लेस पे क्या, आपका एक बार वापस से राइट कर लेते हैं. p of x क्या है सर? p of x है 2x plus 3. तो इसकी किस पे वैल्यू बतानी है आपको ये बताना है कि x is equals to -3 by 2 क्या है? इस पोलिनोमियल के लिए 0 है. तो अगर ये 0 होगा तो इस वैल्यू पे -3 by 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0. So let's put this value at x is equals to -3 by 2. We will get 2 multiply value of x is -3 by 2. -3 by 2 plus 3. 2 multiply -6, या फिर डायरेक्टली आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, या फिर अगर कैंसिल आउट नहीं करना चाह रहे तो 2 multiply -3 -6 divided by 2, it will be -3. So we will write here -3 plus 3, so it becomes 0. It means I can say that since at x is equals to -3 by 2, p of x is 0. So we can say that x is equals to -3 by 2 is the zero of this polynomial. तो फिर पोलिनोमियल क्या होता है? x का वो वैल्यू जिसपे p of x की वैल्यू क्या बन जाए? 0. तो अब इसको अपन इसी को अपन किस में देखेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग. इट मीन्स ग्राफ पेपर पे अपन किसी पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर ग्राफ पेपर पे किसी भी पोलिनोमियल की 0 को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, वो मीनिंग समझ रहे हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये p of x इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक इट इज x minus 2. It is x minus 2. तो what will be the graph for polynomial x minus 2? आपने लीनियर इक्वेशन के लिए आपने लीनियर इक्वेशन के लिए 9th क्लास में ग्राफ पेपर पे लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना देखा होगा. तो कैन वी नो
कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, लेट्स ट्राई आउट। सबसे पहले आप टेबल बनाओगे इसके लिए। लेट आपको ये पी ऑफ एक्स है वो वाई एक्सिस पे डिनोट करना है, और जो एक्स है वो किस पे, एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे। इट मीन्स आपका एक्स एक्सिस किसको डिनोट करेगा, वेरिएबल को, एंड पी ओ वाई एक्सिस किसको डिनोट करेगा, पी ऑफ एक्स को। वाई एक्सिस विल डिनोट पी ऑफ एक्स। सो लेट्स मेक अ टेबल। ओके, यहाँ पे अपन x राइट करेंगे और यहाँ पे p ऑफ x। सो एट x इज इक्वल्स टू 2, at x is equals to 2, what will be the value of this polynomial? When we will put x is equals to 2, we will get 2 minus 2, that is equals to 0. It means 2 पे p of x की वैल्यू क्या होगी, 0। सेकेंड, सर 1 पे कितनी होगी, सर 1 पे होगी p of 1 इज इक्वल्स टू, पुट x इज इक्वल्स टू 1 हियर, 1 minus 2, 1 minus 2 will be minus 1. At x is equals to minus 1, p of 1 will be minus 1. At x is equals to 0, एक बार 0 पुट करके देख लें। तो when we will put 0, here we will get 0 minus 2, it means minus 2. Now at x is equals to 0 हो गया minus 1, तो at x is equals to minus 1, value of this polynomial will be p of minus 1 and minus 1, sorry, minus 1 and minus 2, it will become minus 3. So let's draw this graph. Two zero, b is 1 minus 1, c is 0 minus 2, and d is minus 1 minus 3. So let's draw here 0 या origin 1 2 3 4 and 5. On y axis 1 2 3 4 5. On x dash axis minus 1 minus 2 minus 3. On y dash axis minus 1 minus 2 and minus 3. So where will we represent a 2 0? 2 0 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, सर x एक्सिस की x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. इट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट मीन्स ऊपर कितने जाना है, 0. 0 मीन्स यहीं पे रहेगा. सो इट इज 2 0 या पॉइंट A. आफ्टर दैट B 1 minus 1, सर 1 minus 1, x एक्सिस 1 और y एक्सिस minus 1. It means since here. Next C 0 minus 2, 0 minus 2. When x is equals to 0, y coordinate is minus 2. It means 0, x coordinate is 0. 0 कहाँ आएगा x coordinate, यहाँ पे, और minus 2 ये वाला. Next D minus 1 minus 3, minus 1 minus 3. So it will represent here. So when will you draw, when we'll join these all points, we will get a line like this. So अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है. तो एक बार देखो कि x की किस वैल्यू पे आपका जो p ऑफ x है, p ऑफ x मीन्स y कोऑर्डिनेट, x की किस वैल्यू पे
y कोऑर्डिनेट आपका 0 बन रहा है, या फिर y एक्सिस y की वैल्यू 0 आ रही है, x की किस वैल्यू पे y कोऑर्डिनेट 0 बन रहा है? सर मैं अगर यहाँ देखूँ तो x मेरा अगर कितना है, यहाँ पे x -2 है, सॉरी x -3 है, और y कितना है, x इज -1 एंड y इज -3। यहाँ पे सर x इज 0 एंड y इज -2, यहाँ x इज 1 एंड y इज -1, एंड यहाँ पे देखो आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स राइट करूँ तो इट विल बी x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। अच्छा y कोऑर्डिनेट आपका था क्या, मैंने आपको यहाँ पे देखो x एक्सिस पे तो क्या लिया आपने, वेरिएबल, एंड y एक्सिस पे क्या लिया आपने, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2 पे आपके पॉलिनोमियल या फिर y कोऑर्डिनेट आपको कहाँ कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इट मीन्स जहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा वही आपका क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल सो इसी बेसिस पे अपन बताएंगे कि कोई भी ग्राफ, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, तो अब अगर मैं आपसे आस्क करूं कि सर इस पे इस पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप बताओगे सर ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। अगर मैं आपसे आस्क करूँ कि ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, तो सर ये लाइन यहाँ पे एक बार ऐसे ही पास करेगी, अगर घूम के आएगी तो वो लाइन नहीं रहेगी, तो अगर ये यहाँ सीधी एक बार पास कर दिए तो ये एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे। इट मीन्स लीनियर ग्राफ के लिए, लीनियर ग्राफ या फिर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस 1, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था। आफ्टर दैट सर ये कोई पॉलिनोमियल है, अब आपको पता, ये भी पता करना है इस ग्राफ के, ओनली ग्राफ पे के बेसिस पे ये पता करना है कि सर ये ग्राफ कैसा है और ये कैसे पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो एक चीज़ बताओ, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, सर यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है और 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सर यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3, और अगर ये नंबर ऑफ, अगर ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये एक कैसे, ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हैव यू गॉट इट। यहाँ पे अपने पास कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ गिवन है, अपने को फाइंड आउट करना है कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूँ तो ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, सो आई कैन से दैट इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 सॉरी, इसके कितने हो जाएंगे 2, ये कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2 और 3 टाइम, सो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 3। अच्छा ये वाला एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, सर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे भी कर रहा है बच्चे, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस से अपने को मतलब नहीं है, अपने को पता करना है एक्स एक्सिस पे कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 टाइम कर रहा है, तो ये कैसे, इसके नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। अच्छा ये इंटरसेक्ट कर रहा है या ओनली, मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाला ओनली टच कर रहा है, तो टच करने से मीनिंग अपन क्या समझेंगे कि अगर ये टच कर रहा है तो 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कोई ग्राफ जैसे ये टच कर रहा है ऐसे, तो टच करने से क्या मीनिंग हुआ कि ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, यहाँ पे सर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4 दिस पॉलिनोमियल। ऑन तो क्या करोगे इसका, तो relation between zeros and coefficient of a polynomial।
अच्छा, आपके सिलेबस में जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कल मैंने आपको 3 टाइप्स के बताए थे सर। फर्स्ट का क्या था आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, a polynomial whose degree is 1, the linear polynomial, a polynomial whose degree is 2, quadratic, and a polynomial whose degree is 3 is known as cubic polynomial. So यहाँ पे अपने पास 3 टाइप्स के polynomials थे। अब अपन यहाँ पे किस में रिलेशन देख रहे हैं सर? नंबर ऑफ, इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट? फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल, आपको लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था ax प्लस बी। अब अगर मैं इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ये वाला जो है पॉलिनोमियल को x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। इट मीन्स ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स on transposing b in RHS you will get ax is equals to 0 and ax is equals to minus b and x is equals to minus b by a। ठीक है, ऐसे अपन दूसरा अगर एग्जांपल लें तो सर एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। p of x is equals to 3x प्लस 5। इसके जीरोस फाइंड आउट या इसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब आप इसका जीरोस देखोगे तो क्या आएगा 3x ऑन ट्रांसपोजिंग प्लस 5 इंटू RHS यू विल गेट -5 एंड x इज इक्वल टू -5। सिंस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में, सो -5 बाय 3। अब देखो यहाँ पे रिलेशन से क्या मीनिंग है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो आपको जीरोस तो मिल गए, ये जीरो ही तो है इस पॉलिनोमियल का। अब मैं आपसे बात करूँ कि सर कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट मीनिंग क्या होता है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल कल मैंने आपको बताया था क्या, ax प्लस बी। तो अगर अपन इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आई आपके पास यहाँ पे सर? वैल्यू ऑफ a मीन्स a क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x। a इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे अगर अपन जैसे p ऑफ x ax प्लस b, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c. It was quadratic polynomial and ax cube plus bx square plus cx plus d. It is cubic polynomial. अब यहाँ पे अपन कोफिशिएंट्स की बात करें तो सर ये वाला क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली एक कांस्टेंट बस अवेलेबल है, तो अपन इसको बोल देंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है उसी को अपन डायरेक्टली क्या स्पीक आउट करेंगे, कांस्टेंट ax क्यूब। इट मीन्स, अच्छा कोफिशिएंट से मीनिंग क्या होगा सर? वेरिएबल के अलावा जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कांस्टेंट अवेलेबल है उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज c एंड कांस्टेंट इज d। नाउ बात करें तो सर ये वाला जो मेरे पास 3 है, ये 3 क्या है सर? 3 मेरा है कोफिशिएंट ऑफ x एंड 5 क्या है? 5 क्या है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म बोल दो या कांस्टेंट, ठीक है। सो
अब यहाँ पे अपन इसको कंपेयर करते हैं कि सर ये 5 के, देखो एक बार यहाँ पे 5 देखो, 5 क्या है आपका, सर 5 है मेरा कांस्टेंट टर्म, अपॉन 3 क्या है सर, 3 मेरा है कोफिशिएंट ऑफ x, 3 मेरा है कोफिशिएंट ऑफ x। इट मीन्स किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, जैसे मैंने ये बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b था, तो उसके लिए जीरोस क्या आया, जीरो क्या आया उसके लिए, माइनस बी बाई ए। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, यहाँ पे माइनस बी क्या है आपके पास, माइनस एज इट इज रहेगा, b क्या है आपका सर, b है आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है सर, a है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये आपका रिलेशन हो गया। देखो रिलेशन किस में बना, अगर अपन इसको एक बार भूल जाते हैं तो क्या ये आपके पास क्या है x, ठीक है, या फिर 0, ये 0 पॉलिनोमियल ही तो है, और ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो अपने पास किस में रिलेशन मिला, जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन मिला। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बोल दो, या फिर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू 9x प्लस 2। अगर मैं आपसे डायरेक्टली आस्क करूँ कि सर इसका 0 क्या होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर अपन -2 अपॉन ए, इट मीन्स माइनस बी बाई ए बोल दो डायरेक्टली, बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको ax प्लस बी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 9 और वैल्यू ऑफ b इज 2। सो माइनस बी माइनस एज इट इज, b के प्लेस पे क्या पुट करना है 2 और a के प्लेस पे 9। तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -2/9। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया किसका, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अपन ने 9 तक क्लास में अपन क्या कर रहे थे, जैसे इसको क्या करते, पहले 9x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करते और फिर सोल्व करते। अब अपने को यहाँ पे सोल्व भी नहीं करना है, डायरेक्टली अपन माइनस बी बाई ए, या फिर अच्छा b से मीनिंग क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा कई बार ऐसा भी हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। इसके लिए कैसे बताओगे फिर, इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, 3x ax प्लस b। तो सर यहाँ पे मेरे पास a तो है 3, b कितना है 2 और -2। सर b पता करने के लिए अपन इसको ऐसा कुछ राइट कर सकते हैं, 3x प्लस -2। क्यों, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। अगर मैं आपको डायरेक्टली ऐसे राइट कर देता तो कन्फ्यूजन होगा कि 2 ले या -2 ले, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो सेम टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या मिली, -2। या फिर आपसे मैं आस्क करूँ सर कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2, सो आई कैन से दैट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी, बताओ, माइनस क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। सो लेट्स टेक आउट माइनस एज इट इज, कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म 2 और -2, सर इट इज -2। सो -2 माइनस -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4/3। So 0 of this polynomial will be 4/3. You can check out also.